Okay, Bismillah Rahman Rahim. Today we talk about, we complete all the number system today and then we move on to the strings, right? Uh, Last time we were discussing that the in numbers in JavaScript are represented using IEEE 754 double precision. Okay, so what is this floating point presentation? And we saw the other languages, they don't use the floating, they use this floating point presentation for only the doubles and floats, but not for the integers and all. But in JavaScript, all the numbers is represented by the double precision, right? So we understand this today, and we have here actually we have two representations of the IEEE 754. One is the 32-bit representation and one is 64-bit. 64-bit is called the double precision. Okay, we understand firstly 32-bit and 64-bit is the same. Then what we do here is we actually have three areas. We divide our number into three areas. We have to understand that. The first is what is called as a significand, and it's from 0 to 23 is the significand, and then there is a biased exponent. So we need to understand what is all of this. We do the example and understand it properly. Then we move on to the strings. Biased exponent, and there is a 1-bit sign. This is the sign. Okay, and same is with the and the this exponent is 8 bits and 1 bit is for sign. So sign is 1 bit. So total 8 plus 1 plus 23 gonna be 32 bits. Similarly, we have the double precision. In double precision, what we have is we got 64 bits total. Okay, in 64 bits we reserve around 52 bits for the significand, and for the biased exponent we have 11 bits. So these are 11 bits, and obviously we have 1 bit for sign. That's only 1 bit for the sign, and the sign bit is of the significant sign, not the exponent sign, because we do not, why we have a bias, we understand it, because we don't want to have the sign in the exponent. What is the problem with that? If we have a number, for example 2 into 10 raised power minus 3, and we have 3 into 10 raised power minus 4, or something like that, we have two numbers like this. Now there is a lot of computation being done. If we have, say for example, this is plus 4, this is minus 4, so when we want to add them together, so we can have, this is negative 2, this is the plus 3, so we have sign of the number and we also have a sign of the exponent. And then there should be, when we actually add them together or do any operations or math operation, then we need to see what is the sign of the exponent and who is bigger. Say for example this is plus 4, this is minus 3, so if we are subtracting this, we have to subtract 4 minus 3, like this. This is the bigger number and we have to subtract from this bigger number this number. Say this was positive and this was negative, now the 3 is bigger, so we have to subtract 3 plus 3 and then minus 4, so it becomes really, you have to do multiple operations and it becomes very, very complex. Then we say that we do not want these signs. We just want to eliminate this sign, this negative or positive. We want to make them both positives. We want to do something so that they are all both positive, so that we don't have to compare the sign at all. So if the both are positive, this is 10 raised power 3, this is 10 raised power 4. If the both are positive, so we have no issues, right? It becomes simple. Operation becomes very simple if the both are positive. But if the one is negative, one is positive, we need to compare the signs, and then there is an issue. So here we don't have any issue if we do what? We do not allow the negative numbers. So how is that possible that we will not allow the negative numbers? Is, look here, for example, we have just 3 bits. Consider we have 3 bits only. This is for this exponent. Say for example this is our 3 bits for exponent, and I'm not talking about number this time,
I'm just telling about the bias, why we add the bias to the exponent. We understand that thing only. So I am saying we have a 3 bits, for example. So what is the maximum number? I'm asking you the question. What is the maximum number 3 bits can have? That is, yes, tell me. Are you guys with me? 8. Yes, sir. 7. That can be 7, not 8. That is 1 1 1, right? That's a 7. Yes. The maximum number it can have is all ones. Minimum number it can have is zeros, all zeros. So maximum can be all ones, that is 7. Okay. Now if I do something that I divide this 7 into two parts, say I say it is from -3, okay, to 0 and to 4. So I divide in two parts, -3 to 0, 0 to 4. So I'm saying the maximum number I will allow here in this number is not the 7 but the 4. I remove one, I remove half of the numbers. But what I am doing is I am saying whatever the number comes up, if it is negative or it is positive or so on, because see, if you have firstly, if you want to have a sign, then you cannot. If you have 3 bits, if you have these 3 bits, one bit has to be for sign, right? if you want to save the sign, whether the sign is ये पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, तो वो एक बिट उसके लिए लग जाएगी ना, तो फिर बचेंगे कितनी, 2 ही बिट बचेंगी. तो मैक्सिमम नंबर विल बी ओनली 1 and 1, that is how much, 3. The maximum number you can store in a 3 bits is 3 if you want to store the sign also, right? You getting my point? Yes, sir. So I am doing two things here. I am doing two things. I am utilizing this bit also here. This I'm not using this for a sign. Rather, I use it for data also. So that means I have 3 bits now. Plus, but I'm not telling you that I will store the maximum number 7 here. I'm saying, okay, you have 3, but the maximum number I can store is 4. I'm saying the maximum allowed number is 4 in these digits. But what I do is, if the number comes like, for example, -3, okay, what I will do is I will add to it 2 raised power whatever the bits was. Say for example it has 3 bits, it was 3 minus 1 minus 1. So this is the bias I am going to add. So what is that? So what was, how many bits I have? 3. 3 minus 1 is 2. So here the 2 comes. So 2 raised power 2 minus 1. So 2 raised power 2 is 4. 4 minus 1 is 3. So I am going to add bias of 3 to whatever the number I am getting. Say for example I got -3. And if I have -3, what I do is I add is +3. What it becomes? 0. So I store in my bits 0. So I will say it was a 0 number. In fact, it was -3. Later on, when I have to, I will do all the maths and all, then I can later on subtract this -3 from it to see what was my original number. But right now, if it is -3, because I'm telling you this 3 bits, the maximum, because it was a 7 coming up, so I said I divided into two parts from -3 up to 4, right? So maximum numbers I can accommodate in these 3 bits is from -3 to +4. So if, say for example, now the maximum number comes up 4, I am adding the bias of 3, that becomes 7. So I can accommodate 7 easily, 1 1 1. ठीक है ना? So इस तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ कि जितनी आपकी बिट्स की कैपेसिटी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 बिट्स है, अगर आपके पास 4 बिट्स है, तो अगर आप साइन स्टोर करेंगे तो तब भी आपको 1 बिट साइन के लगेगी, और मैक्सिमम नंबर कैन बी स्टोर्ड इज 7 ओनली. लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम नेगेटिव नंबर्स स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि उनको बायस फॉर्म में पॉजिटिव बनाएंगे. कैसे? मैं कहूँगा कि भाई साहब मैक्सिमम नंबर मेरे पास क्या आ सकता है इसमें 4 बिट्स में? 7. मैं कहता हूँ मैं आपको 8 दे दूंगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है ना. लेकिन आप एक काम करो, आप बायस इसमें 7 ऐड करो. हाउ मच बायस विल ऐड इज 2 raised power 4. जितने भी बिट्स आपके पास थी, जितने भी बिट्स आपके पास थी, से आपके पास 4 बिट्स थी, सो इट विल बी 2 raised power 4. सो इट विल बी 2 raised power 4. ऊपर करेंगे -1, नीचे करेंगे -1. यानी कि जितने भी आपके पास बिट्स हैं उसको -1 ऊपर करें, नीचे -1 करें. यानी कि 2 raised power 4 में से 2 raised power 3 -1. 2 raised power 3 इज 8. 8 - 1 इज 7. यानी कि आप 7 बायस ऐड करोगे. लेकिन आप इसको, जो आपका ये नंबर था, आपको 4 बिट्स थे आपके पास. 4 बिट्स मीन्स 2 raised power 4.
दैट्स हाउ मच 16. 16. सो आप यहाँ से क्या करेंगे काम, आपको 7 इसमें ऐड करना है. क्या करना है आपके इसमें ऐड 7. ठीक है ना, यानी कि अगर आपका फर्ज में नंबर आता है आपका नंबर -6, आप उसको +7 ऐड करोगे, क्योंकि आपको अलाउ ही नहीं करना है नेगेटिव नंबर्स. जिस तरीके से यहाँ पे मैंने कहा कि मैक्सिमम नंबर जो आपका आएगा वो -3 आ सकता है, तो उससे छोटा हम इसमें सेव कर ही नहीं सकते, है ना. उससे छोटा हम सेव कर नहीं सकते इसमें, -3 से छोटा हम सेव नहीं कर सकते. और 4, ये मैंने लिमिट रखी इसकी कि -3 से 4 तक मेरा लिमिट है कि इसमें डाल सकते हो आप. तो अगर -3 आ गया, मैं उसको प्लस यहाँ पे करूँगा, जो मैंने कहा कि आप 3 बायस ऐड करो. तो अगर उसको +3 करेंगे, जो मैक्सिमम माइनस आया मेरे को वो -3 आया, तो मैंने उसको जब +3 किया तो वो 0 बन गया. इसी तरीके से अगर -2 आ गया, उसको +3 करूँगा वो +1 बनेगा. आई विल स्टोर इट एज +1. आया -2 लेकिन स्टोर इट एज 1. इस तरह से अगर मेरे पास आ गया -1, मैं उसको +3 ऐड करूँगा, नंबर तो है -1 मगर मैं स्टोर करूँगा, जब +3 करूँगा तो एज ए 2 स्टोर होगा वो मेरे पास. सो ये बायस्ड फॉर्म में होगा. एंड वाई आई एम डूइंग दैट इज़, मैं देख ही रहा हूँ कि जो मेरे फॉर एग्जांपल 3 बिट्स का मैंने सिनेरियो बताया आपको, इसमें अगर मुझे साइन भी ऐड करना है यहाँ पे, तो बचेंगी 2 ही बिट्स. तो मैक्सिमम नंबर कैन बी स्टोर्ड एज 3, -3 और +3. अगर यहाँ पे 0 है तो +3, अगर 1 है तो -3. सो मेरी रेंज जो इसकी है दैट इज़ फ्रॉम -3 to +3. मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास तो सेम ही नंबर है, सेम ही रेंज तो मैं सेम ही रख रहा हूँ. इनफैक्ट मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ फ्रॉम -3 to +4, एक एक्स्ट्रा ही कर रहा हूँ. लेकिन मुझे बाद में जो कंपटीशन करनी है, जब मेरे नंबर्स आ जाएंगे 10⁻³ एक है, 10⁻+4 है, फिर उनमें जब हम मेरे मैथ के ऑपरेशंस लगेंगे इसमें, तो मुझे ये साइन बिट देखना पड़ेगा किसका बड़ा है किसका छोटा है, फिर उस हिसाब से -4 में से 3 निकालने हैं, वैसे करना है. तो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो मुझे टेंशन ही नहीं होती, मैं सीधे ऐड करता 4 + 3 = 7 या 4 - 3 इज़ व्हाटएवर. तो मुझे इसमें साइन देखने की ज़रूरत नहीं थी किसको क्या थी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सर्किटरी लगेंगे, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. और एक नंबर तो आपका रेंज में ऐड ही हो गया. मैं कहता हूँ हाँ सेम ही रेंज है, लेकिन मैं जब आपका नंबर -3 आएगा मैक्सिमम, मैं जब उसको +3 बायस ऐड करूँगा तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा सारा, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा. और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका +4 भी अगर आ गया, उसको मैं जब -3 करूँगा ऐड, वो 7 बनेगा. 4 + 3 7, और वो 7 मेरे 3 बिट्स में आराम से स्टोर हो सकता है. ठीक है. सो इस तरीके से मैं कहता हूँ कि आप अपना एक्सपोनेंट, यानी कि आपका जो कोई भी नंबर है, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास नंबर है 2 × 10⁻³ इसका भी अपना साइन प्लस माइनस हो सकता है. इसकी प्लस माइनस साइन हम रखेंगे स्टोर. वो साइन मैंने कहा कि हमारे पास साइन बिट एक है, ठीक है ना, वो जो ये साइन बिट है, ये जो साइन बिट ये वाली है, ये सिग्निफिकेंट जिसके हम बोलते हैं उसकी साइन है. लेकिन एक्सपोनेंट की हम साइन नहीं रखते, क्योंकि उससे हमारा मैथ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर उसका करना, उसकी एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करना, क्योंकि उसमें पहले कंपैरिजन लगेंगे बाकी चीज़ें. इसलिए हम उसको बायस्ड फॉर्म में रखेंगे. तो अगर मेरे पास 32 बिट है, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर मेरे पास 32 बिट है, उसमें मैंने क्या कहा, आपके कितने लगेंगे आपके पास सिग्निफिकेंट के लिए? 23. जी. सो 0 to 23, और 8 बिट आपके साइन के लिए, एक्सपोनेंट के लिए. लेकिन एक्सपोनेंट विल नॉट बी एक्सपोनेंट, इट विल बी बायस्ड एक्सपोनेंट. ठीक है ना, इट विल बी बायस एक्सपोनेंट. और 1 बिट साइन का, वो साइन किसका है? सिग्निफिकेंट का. चले हम एक चीज़ करेंगे काम, हम यहाँ पे एक नंबर है 178.625. If la same from the same number from the Douglas Hall, we take the same number and then you can apply for any number. हमारे पास एक नंबर है 178.625. इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? इनटू द सिंगल प्रेसिशन फ्लोटिंग पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, ओके. सो मैं आपको स्टेप वाइज दिखाता हूँ, आप भी लिखें साथ साथ. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन बाइनरी. सो आई विल राइट हियर कन्वर्ट इनटू बाइनरी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी. ठीक है. सो अगर आपको 178 करना है कन्वर्ट इनटू बाइनरी में,
दो तरीके आपके पास हैं, या तो आप सीधे लॉन्ग डिवीजन मेथड करें। सो 2 टाइम्स 8 इज़ 16 एंड 2 टाइम्स 9 इज़ 18, तो यहाँ 0 आ गया। 2 टाइम्स 4 इज़ 8 एंड 2 टाइम्स 4 इज़ 8, यहाँ पे 1 आ गया। 2 टाइम्स 22 इज़ 44, 0 आ गया। 2 टाइम्स 11, तो यहाँ पर भी 0। 2 टाइम्स 5 इज़ 10, तो यहाँ 1 आ गया। 2 टाइम्स 2 इज़ 4, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर। सो 2 टाइम्स 1 इज़ 2, तो यहाँ पे 0, और 2 टाइम्स 0 इज़ 1, तो 1। सो ये आपका नंबर है, ठीक है ना। 1 0 1 1 0 0 1 0, ये आपका 178 हो गया। या अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते, आप सिंपल ऐसे किया करो कि ये हो गया 1, ये 2 4 8 16 32 64 128, 128 के बाद क्या आएगा 256, मगर वो इससे बड़ा हो गया है ना, तो वहाँ हम स्टॉप करेंगे। हम 128 पे अपना 1 डालेंगे। 128 पे मैंने अपना 1 डाला, यानी कि 178 में से 128 आ गया। तो अगर 178 मेरे पास है, उसमें से 128 आ गया, तो बचा कितना 0, तो 50 बच गया। 50. तो 50 बच गया, तो 64 पे इसका मतलब है 0, क्योंकि 64 50 से ज़्यादा है। तो 32 पे 1 डालो। जो 32 पे 1 डाला, तो 50 में से 32 आ गया, ठीक है ना। 10 में से 2 निकालो तो 8 हो गया, और यहाँ बच गया 4 4 18। अब कितने बच गए 18। 18 हो गया, 16 पे 1 डालो, तो डाला 16 पे 1, तो कितने बच गए अब 2, तो वो 2 पे 1 डालो और बाकी जगह 0, और ये वही नंबर होगा जो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके आया 10110010 आ गया ना, ठीक है। ये हो गया आपका 725, ये आपका 178 है। अब 625 को कन्वर्ट करना है। जब 0.625 को हम कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे करते हैं कन्वर्ट, दैट इज 0.625 है ना। जब 0.625 कन्वर्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे करते हैं ना, 2 5 और 10 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 इज 5, 2 6 इज 12 को 1.2, पॉइंट किधर क्या आया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हमें 1 आ गया ना, अब पकड़ना है ये 0.25, तो अब 0.25 0 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो। सो दैट इज 2 टाइम्स 5 इज 10, दैट इज 0.50, पॉइंट के यहाँ क्या आ गया 0, तो यहाँ पे अब आएगा 0। अब नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे हम 0.50 को, इसको 2 करें, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 0 0, 2 टाइम्स 5 इज 10, ओके। अब एक आ गया, वो इधर जाएगा, और चूंकि पॉइंट के इधर ख़त्म हो गया सब, और यहाँ 1 आ गया, वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड वी स्टॉप, क्योंकि हमारे पास अब रहा नहीं नंबर, यहाँ पे 0 0 है। सो इसको सीधे ऊपर से आएंगे, दैट इज़ 101, इसको नीचे से आते थे, इसको ऊपर से आएंगे सीधे, 101 इज़ द आंसर। सो 0.625 का बाइनरी है 101। सो कुल मिला के मेरे पास आएगा यहाँ पे ऐसे 101। ये रिप्रेजेंटेशन है 7 to 178 की, और ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी 6 to 5 की, ठीक है। अब हम ये बाइनरी कन्वर्ट किया, हम अब स्टेप सेकंड पे जाएंगे, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम एक चीज़ है कि हम 1 0 को तो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो फ्लिप फ्लॉप्स की बनी है, वहाँ आप 1 स्टोर कर सकते हो, 0 स्टोर कर सकते हो, लेकिन पॉइंट स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए हम पॉइंट स्टोर ही नहीं करते, बल्कि वो हम एज्यूम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है। सो हम ट्रिक वे यहाँ पे काम लेते हैं। तो हम क्या करते हैं काम, इस पॉइंट को मैं फ्लोट कराऊंगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लोटिंग पॉइंट, क्योंकि वरना हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट होता है। फिक्स्ड पॉइंट में पॉइंट फ्लोट नहीं करता। फ्लोटिंग पॉइंट को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट को फ्लोट कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू फ्लोट इट टू द लास्ट वन, उससे पहले मैं इसको ले सकता था यहाँ पर इस आखिर में, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लूँगा इसको, इस पॉइंट को, और मैं ये 1 भी स्टोर नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ पे 1 है, तो इसको स्टोर करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पॉइंट मैंने लिया वो लास्ट 1 के पास लिया, तो ये 1 भी पता है। तो हम ये भी ट्रिक करते हैं कि इस 1 को भी स्टोर नहीं करते, हम कहते हैं ये भी एज्यूम करेंगे, और ये 1 और ये पॉइंट, ये दोनों हम एज्यूम करेंगे, वी विल नॉट स्टोर देम। तो फिलहाल अगर मैंने इस पॉइंट को कहाँ लिया, यहाँ पे फ्लोट करवाया, लेकिन कितने डिजिट चला मैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैं 7 डिजिट इसको पीछे चला यहाँ से,
सो उसका मतलब है जो मेरा ये नंबर है इट इज़ एक्चुअली 1.011010। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, ये 101 रहेगा, लेकिन इसको एक्सपोनेंट 7 आ जाएगा। भाई साहब हम कहेंगे एक्सपोनेंट 7 है क्योंकि आपने 7 इसको फ्लोट करवाया नॉर्मलाइज करके। इसको नॉर्मलाइज कहते हैं कि ताकि लास्ट वाला जो 1 है उसके पास आप पॉइंट को भेजो। ठीक है, अब मैंने नॉर्मलाइज किया है। नॉर्मलाइज क्यों किया? क्योंकि मुझे ना ये पॉइंट और ना ही ये 1 स्टोर करना है, मुझे ये वाला नंबर स्टोर रखूँगा मैं। ठीक है ना। अब जो ये E7 है ये एक्सपोनेंट है, इसको हम, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास पॉइंट, अगर आपके पास नंबर ऐसे था, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ आपके पास नंबर ऐसे था कि पॉइंट इस साइड था और आपको यहाँ लेना है। ठीक है, 0.000101001 ऐसे था कुछ, तो उस सूरत में पॉइंट आपको यहाँ लेना है इस 1 के पास। तो जब पॉइंट आप इस 1 के पास फ्लोट करवाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट आएगा, आप नेगेटिव में चल रहे हो ना, 1 2 3 4 5 -5 आ जाएगा। तो यानी कि एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। इस सूरत में हमारा पॉजिटिव था, इस सूरत में नेगेटिव था, लेकिन हमने कहा कि हम एक्सपोनेंट का ये साइन स्टोर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मैथ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें सर्किटरी बहुत सारी लग जाएगी, तो उसको ट्रिक करके हम बायस कर देंगे। और हालांकि मुझे स्टोरेज में कोई इशू नहीं है, स्टोरेज उतनी ही है, इनफैक्ट एक ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि आपको अगर 4 बिट्स हैं उसमें 3 बिट्स लगेंगी और 1 बिट साइन के लगेगी, तो इसलिए आपका मैक्सिमम जो है वो वही 3 बिट वाला आएगा। तो हम कहते हैं वही रखेंगे, लेकिन बायस्ड फॉर्म में रखेंगे। किस फॉर्म में रखेंगे? बायस फॉर्म में। अब अगर इसका बायस हमें निकालना है, हमारे पास कितनी बिट्स हैं साइन के लिए? 8। सो व्हाट विल बी द बायस हियर? सो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे काम? स्टेप 3, एड बायस टू एक्सपोनेंट, एड बायस टू एक्सपोनेंट। ठीक है ना। अब एक्सपोनेंट को बायस करेंगे, तो करो एक्सपोनेंट को बायस। एक्सपोनेंट क्या है? 7। सो व्हाट विल बी द बायस? फर्स्ट कैलकुलेट द बायस। बायस विल बी इक्वल्स टू 2 रेज पावर, जितनी आपके पास साइन की बिट्स है, एक्सपोनेंट की बिट्स है, -1 है ना अभी जो किया। सो दिस विल बी 2 रेज पावर 7 -1, 2 रेज पावर 7 इज 128, 128 -1 इज 127। सो बायस 127 आप ऐड करेंगे। ठीक है ना। आपको जितनी बिट्स हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितनी भी बिट्स हैं उसके ऊपर -1 करो, नीचे -1 करो, बस। ठीक, 2 रेज पावर में। सो 2 रेज पावर 7 -1 दैट विल बी 127। यानी कि अगर आपका एक्सपोनेंट 7 था, उसको आप ऐड करेंगे 127। सो दैट विल बी हाउ मच? कैन यू कैलकुलेट? 134। 134, सिंपल एज इट इज। अब 134 का बाइनरी देखो पहले, इसको इसमें बाइनरी लिखना है ना इसको। 134 का बाइनरी देखो, क्योंकि ये मेरा, ये जो मेरी चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है, ये बन गया मेरा, ये जो मुझे स्टोर करना है एज एन, यहाँ तक 01100101101, ये मेरा सिग्निफिकेंट आ गया, ये मेरा सिग्निफिकेंट आ गया, और एक्सपोनेंट मेरा आ गया 134। अब इस 134 का हम क्या करेंगे? बाइनरी। मैंने आपसे कहा था दिस इज़ 1, this is 1 2 4 8 16 32 64 128। 120 पे स्टॉप करेंगे क्योंकि उसके बाद 256 उससे से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 हम डालेंगे 128 पे। सो 134 में से 128 आ गया ना। तो कितना बचा वहाँ से? 6। 6 क्या होता है? 4 और 2 है ना, तो बाकी जगह 0। ये आपका जो चीज़ है, ये आपका एक्सपोनेंट आ गया। तो लगाओ अब आपका जो फॉर्मेट है उसमें लगाओ, है ना, जो हमारा फॉर्मेट है अब इसमें 32 जो ना 32 बिट सिंगल प्रिसिशन, IEEE 754, IEEE 754 32 बिट सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट। बीइंग ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। अब पहले आपका इसमें कौन आ जाएगा? सिग्निफिकेंट हम शुरू करेंगे यहाँ से 011। सो दिस विल बी 011, उसके बाद 00, उसके बाद 10101 10101, यह आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और है हमारे पास 32। तो बाकी ज़ीरोज़ लगेंगे सारे, जब तक कि आपको
कितने बिट्स मैंने बताया था 20, हाँ जी कितने बिट्स का लगता है इसमें 23. 23 बिट्स, ठीक है ना। तो बाकी 23 बिट्स यहाँ पे ज़ीरोज़ लगेंगे, 23 बिट्स यहाँ से शुरू। अच्छा, और इसमें आप ख्याल रखें कि आपका 1 पॉइंट इस्तेमाल ही नहीं करना है। वो हमें पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है और 1 है, तो जब हम इसमें मैथ करेंगे हमें ऑलरेडी पता है कि जो सिग्निफिकेंट की बिट्स हैं, यानी कि ये जो 23 बिट्स के बाद जो है 0 to 22, जो 22nd बिट है यहाँ पे, 22nd बिट के बाद जो बिट है वो असल में पॉइंट एंड 1 है, ये हमें पता है, वो वी एज्यूम इट इज़ देयर, लेकिन स्टोर नहीं कर देंगे क्योंकि इससे हमें एक बिट बचेगी ना। एक बिट मीन्स ह्यूज थिंग, यू नो। एक बिट में अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास था अभी 512 लेंगे हम, अगर आपके पास 9 बिट्स हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, देखो 256 512, इस हर एक बिट में देखो आप जो नेक्स्ट बिट होगी वो डबल होगी। ये वाली क्या है 1024, यानी कि अगर मैं ये नंबर स्टोर करूँगा, इसमें नंबर नहीं करूँगा, अगर इतने में मुझे 512 पहुँचता था, अब इतने में मुझे 1024 पहुँचेगा, इसका डबल पहुँचेगा। जितना आप आगे आगे जाओगे उतना आपका इंक्रीज होगा, यानी कि अगर आप एक बिट बचाओगे MSB, जितना भी ये नंबर रिप्रेजेंट करता है उसका डबल आप इसमें स्टोर कर सकते हो। सो इट्स ए ह्यूज सेव, just saving single, it's not just saving single bit, you can simply have double number in that bits, you getting my point। अच्छा, एक्सपोनेंट में सीधे लगेगा ये 1 0 0 0 0 1 1 0, और जो मेरा साइन है चूंकि ये जो 178 था इसका साइन क्या था पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डबल सिंगल प्रेसिशन नंबर, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका 64 बिट है, तो 64 बिट में कुछ नहीं करना, में सिर्फ 22 निकालना है, बाकी तो यही है सेम है ना। ये साइन हो गया, ये आपका 11 बिट्स का, इसमें 11 बिट्स का बायस एक्सपोनेंट आएगा, और इसमें आपको 52 बिट्स का जो है एक्सपोनेंट सिग्निफिकेंट आएगा। तो यानी कि सिग्निफिकेंट आपका यही है जो आपको आया। अगर इसी नंबर को हम करेंगे दैट इज़ 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0, बिल्कुल बाकी सारे ज़ीरोज़ हैं जब तक कि ये 52 बिट्स ना आए। अब इसका बायस्ड एक्सपोनेंट कैसे निकालोगे बताओ जल्दी। व्हाट विल बी द बायस, दैट विल बी 2 raised power 11 minus 1 2. तो कितना आएगा वो, व्हाट इज 2 raised power 10, so it will be 1023। so the bias you will add is 1023, this is the bias। आपके पास 7 था, उसको बायस आपको ऐड करना है 1023, दैट इज 7 + 3 is 10, so this is 3, so 1030। यानी कि अगर इसको बाइनरी फॉर्म में आपको करना है, बाइनरी फॉर्म में ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो गया 128, फिर 120 के बाद 256 512 1024, 1024 के बाद एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए 1024 पे 1 डालेंगे। सो इसमें से 1024 आ गया, तो बचे कितने 6, 6 सो 6 विल बी 4 and 2, बाकी ज़ीरोज़। और ये आपका इसमें बायस्ड एक्सपोनेंट आ जाएगा, दैट इज़ 1 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 1 1 0, और यहाँ पे साइन अगर 0 थी पॉजिटिव है तो 0 वरना नेगेटिव। लेकिन इस एक्सपोनेंट की हम साइन सेव नहीं करते बल्कि उसको बायस्ड फॉर्म में रखते हैं, ताकि हम इधर से ही कोई पॉजिटिव नंबर उसको देंगे ताकि वो हमेशा पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। यानी कि जो मैक्सिमम मेरा नेगेटिव आपको देखना है कि मेरा जो इसमें मैक्सिमम नेगेटिव जो आएगा, ठीक है ना, उतना आप इसको ऐड करोगे, सो दैट वी डोंट हैव द नेगेटिव नंबर्स इन द एक्सपोनेंट, दैट इज वाई दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज एन बायस्ड एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है डबल प्रेसिशन वाला, ये वाला 64 बिट डबल प्रेसिशन, जो आपका डबल वगैरह जितने भी आपने आज तक देखे ना जावा के अंदर, सी के अंदर, C++ के अंदर डबल हमारे पास डेटा टाइप होता था, वो असल में इंटरनली ऐसे स्टोर करता है। ठीक है, ठीक हो गया। एनी इश्यूज इन इट? No, sir. Then we go for the introduction of string. String is a very important topic here, और strings जो है
So we take up the strings now, okay? Everybody with me? Yes, sir. Yes. Yes, strings are very important topic here. और बहुत सारे confusions होते हैं strings के related. So strings जब आप काम करते हो, it can be defined in two ways. Either it will be defined as primitive, literals, or they can be defined as objects. ठीक हो गया? या तो आप इनको primitive literals से करेंगे या इसको क्या करेंगे as an objects. और जब आप primitive literals करोगे, ये आप तीन तरीके से कर सकते हो primitive literals. You know, you can use single quote, you can use double quote, and you can use the backticks. You can use what? Backticks. You can use single quote, you can use double quote, and you can use the backticks. Backticks आपके ES6 में आ गया था, ठीक है? और backticks से हमें बहुत फ़ायदे आते हैं. ये आपका जब ES6 आ गया तो वहाँ पे backticks लग गया, वहाँ इंटरपोलेशन हमारे पास होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं बताऊँगा. और हम एज एन ऑब्जेक्ट भी सेव करेंगे इसको, एज एन ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड. लेकिन जब आप न्यू करोगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा वैर ए इक्वल्स टू जुनैद, ठीक है? और आप कह सकते हो वैर बी इक्वल्स टू सिंगल कोट में जुनैद. आप कह सकते हो वैर सी इज इक्वल टू बैक टिक्स में जुनैद, ठीक है? ये तीनों एज ए लिटरल एंड प्रिमिटिव फॉर्म्स है. और इनके ऊपर जो है ऑप्टिमाइजेशन लगेगी, बिकॉज इनकी जो मेमोरी है वो फ्री पूल में दी जाएगी. आई टोल्ड यू वी हैव अ स्टैक, ओके, वी हैव द हीप. और फ्री पूल तो बेचारा किसी को पता ही नहीं होता जैसे, तो ये फ्री पूल है जहाँ पे आपकी मेमोरी दी जाएगी इस जुनैद की, यानी कि इसमें से ए बी एंड सी तीनों के लिए एक ही जुनैद क्रिएट किया जाएगा. एंड यू हैव इन स्टैक ए बी और सी, दे आर ऑल पॉइंटिंग टू दिस, ठीक है? ओनली वन string. That is why we say strings are immutable, you cannot change it, ठीक है ना? तो हाँ, you can change it, you can say a equals to now for example मुत्तकी, ठीक है ना? तो लेकिन a is equal to मुत्तकी जब आप कहोगे वो इसमें चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये जुनैद में अगर चेंज करोगे वो b को भी चेंज होगा, c को भी चेंज होगा. सो इट इज immutable, you can't change it. Strings are immutable, you cannot change it, but you can create a different variable मुत्तकी and you point a to it, ठीक है ना? अच्छा, अगर आप कहोगे फॉर एग्जाम्पल जब आप जुनैद करोगे ना ए स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू जुनैद, तो आपको बाज़ाब्ता एक जैसे एरे होती हैं वैसे ही आपको इंडेक्स मिलेगा. हालांकि अब आप कहोगे ये तो एरे है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इसमें इंडेक्स मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ JUNAID, you can access it using for example a of 0, a of 1, we can do that. अच्छा जी, ये एक बात होगी. But if I say now a of 0 is equal to m, so I am trying to change the j of Junaid here to m. This is not allowed because strings are immutable and individual change जब आप करोगे तो वो होगी ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, अगर ए से आपने पूरा वर्ड ही चेंज कर दिया, आपने नई स्ट्रिंग ही खड़ी कर दी, तो वो होगा. तो ए विल पॉइंट टू द न्यू स्ट्रिंग एंड यू विल बी गिवन मेमोरी. लेकिन अगर आप इसको इंडिविजुअल करेक्टर चेंज करना चाहते हो, ए ऑफ 0, अगर आप ए ऑफ 0 पढ़ोगे नो प्रॉब्लम, इट्स रीड ओनली, यू कैन रीड इट, इट विल गिव यू जे. अगर आप ए ऑफ 1 पढ़ोगे इट विल गिव यू यू. ए ऑफ 2 पढ़ोगे इट विल गिव यू एन. बट इफ यू वांट टू चेंज दिस थिंग or delete this thing, you cannot do it. You can't, that's not allowed because strings are immutable, you can't do it. That's the thing. Got it? अच्छा, अब दूसरी बात इसमें है कि हम कहते हैं कि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है और जो हमारे एरेज हैं वगैरह वो हीप में बनते हैं. दे आर ऑब्जेक्ट्स, दे आर व्हाट? ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स हैव मेंबर मेथड्स और हेल्पिंग मेथड्स. वी हैव मेंबर मेथड्स. तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर. जैसे एरे के ऊपर आप उसकी लेंथ ढूंढनी है, उसका ये करना है. तो फिर हम जब स्ट्रिंग मेरी है, हम कहते हैं कि स्ट्रिंग जो मेरा है वो प्रिमिटिव है, वो आपका हीप में नहीं होता. तो उसके ऊपर फिर मेथड्स कहाँ से आ गए?
ये मेथड्स कैसे लगते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हम सारे के सारे मेथड्स, बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ऑन स्ट्रिंग्स। अब इशू हमारे पास ये है कि हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आप मेथड्स लगा रहे हो स्ट्रिंग पे, वो कैसे हो गया पॉसिबल जबकि ये प्रिमिटिव है। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट क्या करता है काम, इंटरनली इट wraps योर प्रिमिटिव, जो आपका प्रिमिटिव स्ट्रिंग है, ओके, इसको करता है wrap into an ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, एज इफ जैसे कि आपके पास न्यू है, आप न्यू कीवर्ड से एक स्ट्रिंग खड़ी करोगे, तो उससे फॉर एग्जांपल if I go here in a browser and say inspect console, if I say here for example a equals to Junaid, ठीक है ना, I could say a equals to single quote में Junaid, not an issue, or b is, I updated it, but if I say a of 0, write this, if I say a of 0, it's telling me it is j, right? If I say type of, if I say type of a, so it's telling me it is string, that's 100% string, that's not an issue, ठीक है ना, it is a string. Now if I say यार थर्ड पार्टी कुकी का देखना पड़ेगा क्या मसला मुझे है, कमांड के पता नहीं पर उससे क्या हो रहा है, anyways learn more in the issue tab, बे यार छोड़ दे अब, anyways now but if I say for example I say where s is equal to, then I say new and I use a string, I use a constructor method and I create Junaid here, okay, and if I say type of s, it will be an object, as you could see, it will be an object, and if you write here s for example and it's telling me it's a string Junaid, but if you open it up, now you see here this object will have firstly the index, where each letter will have its index is 0 1 2 3 4 5. It is also given one more attribute, it's not a method, it's an attribute, that is length. You can't use the parentheses with the length because it's not a method. If you want to say here say for example s dot length, okay, now you don't have to use parentheses, it will give you just 6, bro, it will give you just 6, but it's not given an attribute, it is given to you, okay, it is same as, you say j u n and the one more attribute you got, that's a length, which is telling me what's the length of your string, it is being given to you. Then there is a prototype, okay, and in prototype you see lots and lots of things. These are all methods, as you could see here, the braces, they are all methods, these are all methods here, okay, and then there is an prototype object, and there are a lot of object stuff, like we have constructors has their own properties, and then there are toString and value of, there are tons of things, okay, which is being given to a string object. But this is my object, right? If I say type of s, if I say type of s, okay, now this is an object, but if I say type of a, it's gonna be string. But if I say a dot length, length, will it give me? It's giving me exactly. How is it possible that a primitive data type is using the जो ऑब्जेक्ट आपके पास इसके था, जो स्ट्रिंग आपका ऑब्जेक्ट मेथड से आपने किया, you said s is equal to new. We will see, if you have not read the object oriented concepts and all, we will see how to create, different objects and how we discuss them third year later on. But if you are little understanding that these are the constructor methods, this is how we create an object. अगर आपको समझ नहीं आता अभी ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है वगैरह वगैरह, डोंट वरी अबाउट इट, अभी गोटा ही याद रखो कि ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट करना होगा हम न्यू कीवर्ड करते हैं, और जब भी आप न्यू करते हो वो हीप में होता है। तो यानी कि आपके पास, इससे पहले मैंने कहा ए आपका, मैंने ए में भी जुनैद डाला, बी में भी जुनैद डाला, सी में भी जुनैद डाला, लेकिन ये सारे के सारे स्ट्रिंग पोल में होंगे और ये सारे के सारा एक ही जुनैद को ये कर रहे होंगे। लेकिन जो आपका ये एस है, जो आपने न्यू से किया, दिस विल बी गिवन इन अ हीप, so this Junaid will be in a heap. If you say triple equal to on these guys, so they will be different. Junaid is different memory location, this is different memory location.
सो दे वोंट बी इक्वल। लेकिन अगर आप ए बी सी को करोगे वो सेम ही लोकेशन को, अगर आप ना वो मेमोरी शॉट लोगे तो वहाँ वो जो मैंने परसों दिखाया था आपको, ये एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते होंगे, बिकॉज ये ऑप्टिमाइजेशन का मसला है, यहाँ ऑप्टिमाइज करते हैं हम। लेकिन जब आपने न्यू किया, द मेमोरी इज क्रिएटेड इन द हीप, it won't be given, it will be different. This Junaid will be totally different with this Junaid, which was in a pool, free pool, right? This was in a free pool, this is in a heap. It's totally different. They have nothing to do common with that. But the thing is now that if this a equals to Junaid was what? It was a primitive. Okay, so how come I used the length here? I use the type of, I use the a dot length, I use a dot trim, I use a dot slice, I have character at, index of. There are tons of methods. I can use all of them using the string. Why? Because my JavaScript is doing what? It is wrapping internally. You have created a primitive. You have created a primitive string by saying a equals to Junaid. You just created a primitive string using a string literal. So you are using a literal method. Literal means some constant, which is in double quotes. It was not an object. It's not an object at all. It's a simple primitive. Just like you say a equals to 24, it is just where a is 24 is just a primitive data type. It doesn't have a methods, because the objects और primitive data types में यही फ़र्क है कि जो objects होते हैं उनके अंदर methods होते हैं जो उन जो value आपका है उसके ऊपर apply करते हैं। आपको रीड करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको रिवर्स करना है, फर्ज में एरे है उसको रिवर्स करना है, उसको ये करना है, उसको वो करना है, उसके लिए आपको मेथड्स दिए गए हैं, यू कैन अप्लाई ऑन दम। लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सिंपली अपनी चीज़ होते हैं, उनके साथ कोई मेथड वगैरह वो ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? दे आर नॉट फॉलोइंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई वी कॉल देम दे आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब स्ट्रिंग भी प्रिमिटिव में आ रहा है, लेकिन हम फिर भी उनमें अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इंटरनली इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है इनटू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये जुनैद आपको है यहाँ पे। और जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अभी आपने देखा इसमें जो ये मेथड्स थे, इसके अंदर सारे मेथड्स जो हैं वो सारे मेथड्स हम इसके साथ नहीं हैं, लेकिन वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज wrapped in that object, it is wrapped in the string object by the JavaScript, and then you can apply all the methods ऑन दैट स्ट्रिंग, जो कि आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो आपका स्ट्रिंग है उसके ऊपर कर सकते हो। वो सारे के सारे मेथड्स जो हमने दिखाया यहाँ पे आपको इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है ना? इसमें इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, 0 से 1 2 इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो, लेंथ बता सकते हो, प्रोटोटाइप में मेथड्स जितने भी आपके हैं ये सारे के सारे मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो उनके ऊपर, क्योंकि आपका जो प्रिमिटिव स्ट्रिंग है इसको रैप किया हुआ है आपने किसके अंदर? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजिंग बाय द जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना? इन चीज़ों को हम कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट नाउ वी गेटिंग लेट, आई हैव टू आल्सो मूव ऑन। ठीक हो गया? समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी। स्टूडेंट काउंट इज टुडे लो बिकॉज मे बी एवरीबडी इज स्लीपिंग। तुम्हारी शंगित की तुझे होशियारी। Strings are very important topic, and you will learn a lot of things here. So inshallah ta'ala we carry on this class tomorrow. ठीक है ना? Any questions? हाँ जी। No, sir. Okay, thank you.